Now let's start with our exercise 5.2 which is completely based on पाई चार्ट, जो हमें अभी अभी हमने पाई चार्ट को पढ़ा. ठीक है. सो मैं the one suggestion is please look at your textbook for question. Okay. The first question in the exercise 5.2 is given as a survey was made to find the type of music. एक सर्वे किया गया. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. ठीक है. Adjoining pie chart. Pie chart जो मैंने बताया था कि it is represented in a circular form. It is represented in a circular form. Shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following question. ठीक है. तो हमारे पास पाई चार्ट बनाया हुआ है. हमारा मेन मकसद क्या है कि विद बाय लुकिंग एट द पाई चार्ट वी हैव टू फाइंड द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, which is from this pie chart answer the following question. The first question is okay, if 20 people's, okay, the question is now if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमें इसका आंसर बताना है कि इफ़ 20 पीपल लाइक, जो 20 पीपल से अगर उनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया है तो हाउ मेनी यंग पीपल्स वर सर्वेड. जस्ट लुक एट द पाई चार्ट. ओके, जस्ट लुक एट द पाई चार्ट. जस्ट लुक एट द पाई चार्ट हियर. इट सेज दैट क्लासिकल म्यूजिक कितना परसेंटेज है, 10%, सेमी क्लासिकल 20%, लाइट इज़ 40% एंड फोक इज़ 30%. इज दैट क्लियर? तो हम इस क्लासिकल का यूज़ करेंगे टू गेट द आंसर. इज दैट क्लियर? एंड टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज होगा? ओवरऑल इट इज़ 100%. So according to given question, according to the pie chart, classical music is how many percent? 10%. According to chart, classical music is 10%. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे? 10% represent 100 people. Here if you are to read question carefully, इसमें क्या लिखा है? पाई चार्ट 20 people like classical music and here आप देख सकते हो कि क्लासिकल म्यूजिक कितना परसेंट है? 10%. नाउ 10% represents 100 people. Ten people कितना? 10 people will represent 100 people if you were to see the chart. Therefore 20% is equal to 100 into 20 upon 10, which is equal to 200 people. Hence 200 people were surveyed. कितने? Hence 200 people were surveyed. Is that clear? This is the first question. Second question क्या है? Which type of music is liked by maximum number of people? Then look at the chart. सबसे ज़्यादा किसका है? आप चार्ट में देख के बताइए. तो लाइट. ओके, लाइट को 40% है. So light music is, I'm not writing the question but you can get the question from the textbook. Light music is liked by
द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? लुक एट द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 सीडीज, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक? अगर कैसेट कंपनीज जो है वो 1000 सीडीज बनाते हैं, देन हाउ मेनी ईच टाइप दे वुड मेक? तो हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी सीडीज। सो थर्ड question you can write from the textbook, you can see. So see a series of classical music will be equal to CD is 10% into 100 upon into 1000 upon 100. ठीक है। 10% of 100 into 1000 which is 100. Similarly, series of semi-classical music कितना होगा? Semi-classical music is 20%. So semi-classical music कितने परसेंटेज है हमारा? According to the chart it is 20%. 20% मीन्स 20/100 इंटू 1000. ठीक है। आप लोग शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके रहेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना कि 20% ऑफ 1000 हमें कैलकुलेट करना। तो ऑब्वियसली आप सबको मालूम है क्या होगा? इट्स विल बी 200. ठीक है। सिमिलरली सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक, it will be 40% है CDs का लाइट म्यूजिक, तो 40/100 into 1000 which will be equal to 400. And CDs of folk music I mean to say CDs of folk music is equal to 30/100 into 1000 which is 300. Is that clear? तो ये हमारा 100, 200, 400, 300 ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ सीडीज होगा कंपनी का। Is that clear? तो ये समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो भी दिया है उसमें क्वेश्चन दिया है कि अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड। तो उसमें हमें बताना है, दे आर आस्क यू कि उन लोगों ने पाई चार्ट दिया, सॉरी टेबल दिया हुआ है, एंड द क्वेश्चन आस्क इज विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, देन वी हैव टू ड्रॉ द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर एंड ड्रॉ द पाई चार्ट। ठीक है। सो लेट्स सी ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। So second question is given as, जैसे मैंने बताया, a group of 360 people are there were asked to vote. तो group of कितने students peoples थे? 360 peoples were asked to vote for their favorite season, जिसका लम सम समराइज फॉर्म ये है कि समर के लिए 90 वोट्स, रेनी के लिए 120 एंड विंटर इज 150 वोट। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिला है? विंटर। तो हेंस विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो हम लोग पाई डायग्राम्स बना रहे थे, जैसे पिछले क्वेश्चंस को ये देखिए, 10% क्लासिकल म्यूजिक, ये जो लाइनिंग्स बने थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो सेक्टर कैसे मेजर होता है? इन द डिग्री। तो डिग्री में मेजर करना जरूरी, क्योंकि वो हमें जो इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे दिया 90, 120, 150, दे आर इन्फॉर्मेशन ऑफ वोट्स, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा किस में? 3 सेक्टर एंगल्स में।
एंगल में कन्वर्ट करना जरूरी है. वाई? वेन एवर वी मेक अ एंगल अगर हमारे पास रहेगा तो हमारे पास पाई डायग्राम बनाना, एंगल बनाना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए. इज दैट क्लियर? हम 90 लेके सीधा इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते. वी हैव टू मेक एन एंगल टू गेट अ प्रॉपर रीडिंग. तो इसलिए फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. यहाँ पे 3 सेक्टर बनेंगे. कैसे? समर सेक्टर, रेनी एंड विंटर. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन. ठीक है. तो फर्स्ट central angle of summer season क्या होगा? It will be, what is the 90? How many peoples have there? 360 people. 90 out of 360 peoples had vote here and multiply by 360 degree. तो 360 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री. तो समर इज 90 डिग्री. सिमिलरली सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी season is equal to 120 upon 360 into 360. Again it get cancel. हमारा आंसर is 120 degree. ठीक है. Another is central angle of winter season, which will be 150 upon 360 into 360 degree. Again 360 cancel, which will be 150 degree. Now remember one thing, जब कभी भी हमें सेंट्रल एंगल फॉर्म करना होगा, we have to always multiply by 360 degree. Okay, so this is our central angle question. The third question is draw the pie chart. थर्ड क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ पाई, ड्रॉ ए पाई चार्ट. तो ये हम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँगा. ठीक है. तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पाई चार्ट मीन्स सर्कल. तो बट ऑब्वियसली वी नीड अ कंपस, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में सम इंडियन से राउंडर, and in Hindi language some people say it as a in Hindi I think so it's called a prakar, langha prakar, and various other language various other name, but general schools में इसको general in low English language it's called compass, and in local language we call it as a rounder. Okay, so first of all make a circle. एक बड़ा सर्कल अच्छा बनाओ ताकि थोड़ा नीटनेस दिखे. Like this. This is a sorry, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. Like a balloon. हो गया. ठीक है, चलेगा. It's not a big deal. अब हम क्या करेंगे? to make it like this, we will take a first of all mark the center. ठीक है. then we will make one line. कैसे भी आप एक लाइन बनाइए. फर्स्ट क्या है? 90 डिग्री. फर्स्ट मेक अ लाइन लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन्स मेक अ रेडियस. ठीक है. नाउ 90 डिग्री. सर फर्स्ट हाईलाइट हम 90 डिग्री को करेंगे. ओके, डॉट कर दिया. देन विद द हेल्प ऑफ स्केल
लाइक दिस, ठीक है। नाउ अनदर इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ पे हम करेंगे। रिमेंबर इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो 120 यहाँ पर भी यहाँ पे भी, लेकिन हमें याद रखना 90 से ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पे हमारा 120 डिग्री होगा, ठीक है। सो हियर इट्स 120, लाइक दिस, ओके। तो ये हो गया हमारा 90। अब बचा बाकी का 150, तो लास्ट है, तो लास्ट का हमें बनाने की जरूरत नहीं, द रिमेनिंग वन इज 150, तो हमें इसे हाईलाइट करना जरूरी है, फाइन। तो वी हैव टू मेक अ 90 डिग्री, नेक्स्ट इज 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसे लिखना है कि 90 डिग्री मतलब कौन सा सीजन हो गया, दिस ग्राफ इज हाईलाइटिंग समर सीजन, another this 120 degree is rainy season, another this is winter season, is that clear? So this is our pie chart, fine। ये हमारा pie chart है, this is how you can make a pie chart। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, वेयर देयर सेकेंड क्वेश्चन हमने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन दैट सेड ड्रॉ द पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेबल में दिया हुआ है, ओके। तो हम उसका भी बाय यूजिंग द सेम मेथड ऑफ मेकिंग अ पाई चार्ट, पहले हम सेंट्रल एंगल ढूंढेंगे। किसी भी पाई चार्ट को बनाने का सबसे फर्स्ट रूल है वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल, आफ्टर फाइंडिंग द सेंट्रल एंगल वी कैन इजीली मेक अ पाई चार्ट। सो जस्ट ट्राई इट आउट and if you have any difficulties just let us know। So question 3 is your homework।